بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب شهود الملائكة بدرا. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال أي قال جبرائيل وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة. محترم بزرگوں، حاضرین جمعہ اور عزیز ساتھیوں، بخاری نے عنوان لگایا ہے آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے، باب شہود الملائکۃ بدرا، یعنی بدر کے لڑائی میں، غزوہ بدر میں فرشتوں کا شریک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے، صرف غزوہ بدر میں نہیں بلکہ کئی غزوات کے موقع پر ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کی حالات اچھے نہیں تھے، بہت خراب تھے، اور اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، لیکن وہ مسلمان ایسے تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، ان کے اندر تقویٰ تھا، ان کے اندر استقامت تھی، ان کے اندر صبر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر، جس موقع پر فرشتوں کا اترنا قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اذ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو 3000 فرشتوں سے مدد کی مسلمانوں کی، اور بعد میں پھر ان کی تعداد 5000 ہو گئی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر 5000 فرشتے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام نے تو فرشتوں کی آواز بھی سنی ہے۔ اور اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتے جن کفار کو مار رہے تھے یا حملہ کر رہے تھے، ان کی پہچان یہ تھی کہ ان پر ایک زرد اور ہرے رنگ کا نشان پڑ جاتا تھا۔ یہ اس بات کی پہچان تھی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا بلکہ یہ فرشتوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کا حاضر ہونا یہ نص سے ثابت ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے۔ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہی جاتی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا۔ یعنی غزوہ بدر ایسی لڑائی تھی جس نے ایمان والوں کو ممتاز کر دیا کہ کون ایمان والا ہے، اور کافروں کو ممتاز کر دیا کہ کون کافر یا منافق ہے۔ یعنی گویا کہ غزوہ بدر نے ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی، یہ بتا دیا کہ ایمان والے کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کفار اور منافقین کون ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں، ان کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللہ تعالیٰ نے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ضمانت دی گئی، یہ سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، فقد غفرت لكم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، ان کی فضیلت ان صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔
अहादीस के अंदर ग़ज़वे बद्र में शरीक होने वाले सहाबे किराम की बहुत फजीलत वारिद हुई है। ग़ज़वे बद्र में जो सहाबा शरीक हो गए वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकते, वो कभी मुर्तद नहीं हो सकते, वो ईमान से नहीं फिर सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों को उसके लिए चुना था कि जिनके दिल में खालिस ईमान, खालिस तक़वा, खालिस इस्तिक़ामत और हद से ज्यादा सब्र था। हम भी ईमान वाले हैं, लेकिन हमारा ईमान किस कदर कमजोर है कि हम जिहाद से बहुत दूर की बात है, हम अपनी जबान से कलमात नहीं निकाल सकते, हम अपने कलम से कुछ लिख नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी बुज़दिली, इतना डर समा गया है, इतना खौफ समा गया है। इसीलिए कोई भी कौम उसी वक्त तक इज्जतदार रहती है जब तक वो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने का जज्बा रखती है। अगर कोई कौम अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ना नहीं चाहती, उसके दिल में इसका जज्बा नहीं है, वो बोलने से डरती है, वो लिखने से डरती है, वो जिहाद के किसी रास्ते में शरीक होने से डरती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जिंदे नहीं हैं, हम मुर्दे हैं। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, हम जमीन पर चलती फिरती लाशों की तरह हैं। यानी हम कहने को तो जिंदा हैं, लेकिन हमारे दिल जिंदा नहीं है। इसलिए कि जिसके दिल में जिस कदर ईमान होगा, जिसके दिल में जिस दर्जा सब्र होगा, जिसके दिल में जिस दर्जा मसाइब पर सब्र करने की इस्तिकामत होगी, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अपने जिहाद के लिए चुनता है। हर एक को नहीं ये तौफीक मिलती। हम क्या समझते हैं कि कलिमा तय्यबा पढ़ लिया हमने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो क्या हम जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, बहुत सारे इम्तिहानात आएंगे। कुरान ने खुद कहा है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे ईमान लाने के बाद, जब तक कि अल्लाह ताला तुम में से जिहाद करने वालों को और तुम में से सब्र करने वालों को जान न ले। ये इम्तिहान होगा, कदम कदम पर इम्तिहानात आएंगे और इतने सख्त इम्तिहानात आएंगे जिसको कुरान पाक ने खुद नकल किया है, वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, यानी इतना खौफ का आलम होगा, इतना डर का आलम होगा कि कलेजे मुंह को आने लगे। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर ऐसा हो चुका है कि जब सारे अरब के जो लश्कर थे, सारे कबाइल थे, सबने जमा होकर और इकट्ठे होकर मदीने पर हमला किया था और उनको ये अपने ऊपर ये गुरूर था, अपने ऊपर ये घमंड था और अपनी ताकत पर ये नाज था। वो ये समझते थे कि आज मदीने पर हम हमला करेंगे और मदीने को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन वहां पर नतीजा क्या हुआ? कुरान पाक ने कहा, वारसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा, कि हमने हवा भेजी जिसने दुश्मनों की क्या खेमों में उथल पुथल मचा दिया, और इसी तरीके से हमने ऐसे लश्कर भेजे कि जिनको तुम नहीं देख सकते। फरिश्तों की मदद आई। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर भी मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई। जो हालात उस वक्त के थे, आज से सहाबे 1400 साल पहले सहाबे किराम के जमाने में कम व बेश वही हालात आज भी हैं। जो उस वक्त मुसलमानों की कामयाबी की जमानत थी, आज भी वही जमानत है। यानी अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने का जज्बा रखना, बुज़दिली को अपने दिल से निकाल देना, इसलिए कि ईमान और बुज़दिली कभी आपस में जमा नहीं हो सकती। जिसके दिल में जितना मजबूत ईमान होगा, उसके दिल में खौफ और डर नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसलिए कि हमारा दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, कितना भी चाले चलने वाला हो, कितना भी हथियारों से लैस हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से ज्यादा उसकी कुदरत नहीं है। अल्लाह ताला से ज्यादा वो मजबूत नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन लोगों का ईमान मजबूत होता है, उनके औलाद कत्ल कर दिए गए, बीवियां कत्ल कर दी गई, बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर उसके बावजूद वो घबराते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। वो ये कहते हैं, अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का गम करने की और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ जबान से हम कह दें कि हम ईमान वाले हैं तब नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमारे दिल में वो जज्बा होना चाहिए, हमारे दिल में वो ताकत होनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला कभी हमारा इम्तिहान ले तो हम उस इम्तिहान में कामयाब हो सकें। हमारे अंदर इतना ईमान की ताकत होनी चाहिए, ये तभी मुमकिन होगा।
इसीलिए जिहाद के मौके पर हक और बातिल की तमीज हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। अल्लाह ताला को कभी ये मंजूर नहीं है कि दुनिया की क़यादत, दुनिया की हुकूमत किसी काफिर के हाथ में दे। अल्लाह कभी नहीं ये चाहता। अल्लाह चाहता है कि हमारी बंदों में एक ऐसी जमात हो जो इस लायक हो कि वो दुनिया पर हुकूमत कर सके, दुनिया की क़यादत कर सके। लेकिन आज हम जब अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो हमें कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती है जो इस लायक हो, जो इतना मुत्तकी हो, इतना परहेजगार हो और इतना तकवा वाली हो कि जो दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत रखती हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से हुकूमत छीन कर गैरों के हाथ में दे दिया। ये अल्लाह ताला की सुन्नत चली आ रही है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को कोई नेमत देता है और वो नेमत की नाशुक्री करते हैं, नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला की अय्याशियों में डूब जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे वो नेमत छीन लेता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों में हुकूमत दी। हजरत उमर फारूक का जब दौर आया तो आधी दुनिया से ज्यादा पर मुसलमानों की हुकूमत थी। करीब 75% दुनिया का हिस्सा जो मुसलमानों की हुकूमत में था। खिलाफत राशिदा खत्म हो गई, खिलाफत बनु उमैया के लोग आए, उनके जमाने में भी अय्याशियां होने लगी, हुकूमत पर लोग क्या मौज मस्तियां करने लगे और दीन की तरफ से उनका जज्बा कम होने लगा। अल्लाह ताला ने उनसे हुकूमत छीन ली और बनु अब्बासिया को दे दिया। बनु अब्बास जब तक ठीक रहे तब तक उनके हाथ में हुकूमत रही। जब उन्होंने इसकी नाकदरी की, अल्लाह ताला ने उनसे भी हुकूमत छीन ली, किसी और को दे दिया। खिलाफत उस्मानिया के हाथ में अल्लाह ताला ने, फिर उसके बाद ये सिलसिला हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुकूमत अरबों से छीन ली। अरबों को अब ये हक हासिल नहीं है कि दुनिया की क़यादत करें, दुनिया पर हुकूमत करें। अल्लाह ताला ने उनसे ये हक छीन लिया है। वजह यह है कि उन्होंने इस नेमत की नाकदरी की, नाशुक्री किया। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर ये हुकूमत छीन कर किसको दे दिया? तुर्क को दे दिया। खिलाफत उस्मानिया 800 साल तक कायम रही, करीब करीब 1000 साल तक कायम रही और उन्होंने इस्लाम का दुनिया में बोलबाला किया। बाद में जब उन्होंने नाकदरी किया और यहूद की साजिश की वजह से नतीजा ये हुआ, अल्लाह ताला ने उनसे भी फिर हुकूमत छीन ली और अब हुकूमत गैरों के हाथ में है। आज दुनिया की सारी हुकूमत यहूदियों के हाथ में है। जो वो बोलते हैं हमें वो सुनना पड़ता है, जो वो लिखते हैं हमें वही पढ़ना पड़ता है, जो वो बताते हैं हमको वही सच मानना पड़ता है। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। न हमारे पास तिजारत है, न हमारे पास मीडिया है, न हमारे पास हथियार की ताकत है। जिन मुल्कों को अल्लाह तबारक व तआला ने माली एतबार से मजबूत किया, जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी थी कि वो उसके जरिए मुसलमानों की मदद कर सकते थे, उनके हथियार अगर निकलते भी हैं तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ निकलते हैं। उनके हथियार में यह दम नहीं है कि वो उनके हथियार गैरों के लिए निकल जाएं, उनके हथियार गैरों की तरफ चल जाएं। उनमें यह हिम्मत नहीं है। वो बुज़दिल हैं, डरपोक हैं और अय्याश हैं। उनको अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं है। हालांकि ईमान की खिदमत वो लोग करते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो मुकाबला करते हैं, जो रूखी सूखी खाकर जिंदगी गुजारते हैं, वो ईमान की खिदमत करते हैं। फूलों की सेज पर सोकर कभी ईमान की खिदमत नहीं की जा सकती है। जो कौम अय्याशी करती है वो कभी भी दीन की खादिम नहीं बन सकती। अल्लाह ताला उनसे काम कभी नहीं लेता। सहाबे किराम की जिंदगी को देख लें, सहाबे किराम की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। उन्होंने दीन की खिदमत किया। इसीलिए जो कौम इस बात पर जम जाती है कि अल्लाह ताला हमारा मददगार है, हमारा दुश्मन कितना भी मजबूत हो लेकिन हमारे ईमान से ज्यादा मजबूत नहीं है। कुरान करीम ने तो कह दिया, व इनका मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल, यानी कुफ्फार ऐसी ऐसी चालें चला करते हैं, ऐसी ऐसी साजिशें करते हैं कि उनकी साजिशों की वजह से पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि उनकी साजिशें कितनी भी मजबूत हों, उनकी साजिशें कितनी भी ताकतवर हों, अल्लाह ताला उनकी सारी साजिशों पर पानी फेर देता है, बशर्ते कि हम सही हों। कुरान ने तो मुसलमानों की कामयाबी का ऐलान कर ही दिया। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में ये कह रखा है कि हम पर ईमान वालों की मदद करना वाजिब है, जरूरी है। हम जरूर ईमान वालों की मदद करेंगे,
लेकिन हम उस लायक तो हों, हमारे अंदर वो ईमान की ताकत तो हो। सिर्फ जबान से अपने को मुसलमान कह लेने से या सिर्फ उर्दू वाले नाम रख लेने से या अरबी वाले नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। ईमान दिल की कैफियत का नाम है। इसके दिल में कितना ईमान है ये तब पता चलता है जब आजमाइश आती है, जब इम्तिहान होता है तब पता चलता है। कुरान पाक ने दूसरी आयत में फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। यानी क्या तुम ये समझते हो कि तो तुम जन्नत में चले जाओगे और तुम पर आजमाइशें नहीं आएंगी जैसा तुमसे पहली कौमों पर आ चुका है। तुमसे पहली कौमों पर क्या क्या मुसीबतें आई, उनको फक्र फाका लगा, खाने को कुछ नहीं मिलने लगा, भूखों मरने लगे, ऐसे तरह तरह की बीमारियों ने उनको घेर लिया, ऐसे ही दुश्मन का खौफ उनको घेरे हुए था, हर तरफ से दुश्मन का हमला हो रहा था। यहाँ तक कि इतनी मुसीबतें उन पर आई, इतनी मुसीबतें आई कि ईमान वालों को ये कहना पड़ा वज़ुलज़िलू, उनको बिल्कुल हिला दिया गया अंदर से। इंसान कितना भी मजबूत हो लेकिन जब उस पर मसाइब के पहाड़ टूटते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अंदर से हिल जाता है। कुरान ने यही कहा कि जब आजमाइशें आएंगी, हम पर तो अभी कुछ भी नहीं आई हैं, अल्लाह ताला हमें अच्छे से खिला रहा है, हमें पिला रहा है, आराम से हम सो रहे हैं। इन नेमतों की कदर उनसे पूछिए कि जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। इन नेमतों की कदर उनसे पूछिए कि जिनके पास सर में साया हासिल करने के लिए एक छत नहीं है। उनसे पूछिए कि इन नेमतों की कदर क्या है, अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया और उनसे कैसा इम्तिहान लिया, ये उनसे पूछिए। उनसे जब हम पूछेंगे तब हमें समझ में आएगी कि अल्लाह ने हमें कितना दिया, क्या हम इसके लायक थे, क्या हम इसके मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें दे रखी है, क्या हम इस लायक हैं कि हमें ये नेमतें मिले? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया कि हम लोगों का उतना सख्त इम्तिहान नहीं लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इम्तिहान के लिए तैयार न हो। हर ईमान वाले को चाहिए कि वह अपने ईमान को मजबूत करने की फिक्र करे, इस बात की फिक्र करे कि अगर अल्लाह ताला के रास्ते में कभी हम पर आजमाइश आ गई, कभी हम पर इम्तिहान आ गया, तो हम इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह साबित कदम रहेंगे। मुसलमानों पर जब हर तरफ से मसाइब की बाढ़ आ गई, हर तरफ से मसाइब के पहाड़ टूटने लगे, जब उनके लिए जीना मुश्किल हो गया, तब ये वो कहने लगे कि मता नसरुल्लाह, कब अल्लाह की मदद आएगी। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, सब्र करो, अल्लाह ताला की मदद जल्द ही आएगी तुम तक। लेकिन उसके लिए जरूरी है, फरिश्ते जिस तरीके से ग़ज़वे बद्र के मौके पर उतरे थे ईमान वालों की मदद करने के लिए, अल्लाह ताला आज भी उनके जरिए हमारी मदद कर सकता है, बशर्ते कि हमारे दिल में ईमान कामिल हो, हमारे दिल में सब्र हो, हम जल्दबाजी न करने लगे, हमारे दिल में यह ना हो कि पता नहीं कब तक हमारा इम्तिहान होगा। अगर इस तरह हम कहने लगे तो फिर हमें अल्लाह ताला की मदद नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला की मदद उन लोगों को मिलती है कि जिनके अज़ाइम पहाड़ जैसे होते हैं, जिनका ईमान पहाड़ों जैसा मजबूत होता है, कि वो कितने भी मसाइब आए, कितने भी मसाइब आए, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा हरगिज नहीं कर सकते, वो अपने इस्तिकामत का सौदा नहीं कर सकते, अपने सब्र का सौदा कभी नहीं कर सकते। कितने भी मसाइब आए वो उस पर सब्र कर लेते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि इंसान को सबसे बेहतरीन नेमत जो दी गई है वो सब्र है। जिस इंसान को हकीकी मानों में सब्र आ गया, कितने भी मसाइब उस पर आ जाएं वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, वो उस पर सब्र कर लेगा। लेकिन हम लोगों को भी अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपने ईमान को टटोलने की जरूरत है कि हम अपने जबान से ईमान का दावा करते हैं, हम भी दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम भी दावा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन क्या वाक़यातन हम इस लायक हैं कि हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है? क्या हम अल्लाह ताला के इम्तिहान को पूरा कर सकते हैं? क्या हम इन आजमाइशों पर सब्र कर सकते हैं? ये सारी चीजें हमें खुद देखना चाहिए। हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अपने दिल का मुहासबा करे, वो ये देखे कि उसका ईमान कितना मजबूत है। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि तुम्हारा ईमान कमजोर है और तुम्हारा ईमान मजबूत है। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके दिल में कितना ईमान है।
जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसका नतीजा खुद ब खुद सामने आ जाएगा, वो ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।